Good morning, student. Today we will start chapter 2 about northern plains. As you know, plain areas formed by the action of rivers. जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो मैदानी क्षेत्र हैं वो नदियों के इंटरप्ले से डेवलप होता है. So that is why written here, the northern plain has been formed by the interplay of three major river systems. Because three river systems are responsible for the formation of northern plain, which stretch from west to east. What are the name of these major river system? The Indus, first of all, lies in the western part of the India. Then second one is the Ganga, lies in the middle part of the India. And last one is Brahmaputra river system, lies in the northern eastern part of the India. Beside these three river system, which are responsible for the formation of plain area, they take help from their tributaries. ट्रिब्यूटरीज मीन्स सहायक नदियाँ. तो इन तीन मुख्य नदियों की जो सहायक नदियाँ हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भी हेल्प करती हैं. बिकॉज एज यू नो, सो मेनी स्मॉल रिवर्स ज्वाइन विद दिस थ्री मेन रिवर्स. ठीक है. दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल. अब ये जो मैदान हमारा है वो एलुवियल सॉइल, जिसे हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी जल के रोलिंग करने से फॉर्म होती है. व्हेन द रिवर वाटर रोल्ड ओवर द रिवर वैली एरियाज, देन इरोड द materials from their bedside, and these materials when deposit on any place, then responsible for the formation of alluvial soil. Now next line, the deposition of alluvium in a vast basin laying at foothills of Himalaya over millions of years. है ना. ये जो डिपोजिशन है ये कोई नई बात नहीं है, मिलियन वर्ष से. फुटहिल मीन्स जो पर्वत की चोटी का जो गिरिपद है ना, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से पर्वत की ऊंचाई एलिवेशन शुरू होती है, तो उस प्लेस पे नदियाँ जो हैं ये मिलियन वर्ष से जमा करती रही हैं सीडमेंट्स को. सीडमेंट्स मीन्स अवसाद. नाउ दीज एक्शंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल प्लेन. वाई दिस प्लेन एरिया कंसिडर्ड फर्टाइल? बिकॉज दिस प्लेन एरिया हैव हाई लेवल ऑफ फर्टिलिटी. बिकॉज दिस एरिया सॉइल आर रिन्यूएड. हर वर्ष रेनुअल हो जाती है मिट्टी, और उसमें जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है. इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. पूरे क्षेत्रफल में देखा जाए भारत के तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मैदान पाए जाते हैं. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग. लंबाई अगर इसकी देखी जाए पश्चिम से पूरब की तरफ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, then the total length of this fertile plain area is 2400 kilometer. And beside the breadth, either broader condition of this plain area is different from west to east. It means from west side the breadth of these regions 240 kilometer. Beside the breadth of this plain area towards the east direction, it means towards, we can say, the Bihar and Bengal direction, are 320 kilometers. This area also densely populated. Why densely populated? Because population, either we can say people realize that this fertility of soil helpful for sustain of their life. They can grow more and more crops in these regions. So this area is densely populated. Physiographic division. Physiographic का मतलब होता है भौतिक बंटवारा. It means the physical
condition of India in the case of mountain, plain, plateau, coastal area and island, plains are densely populated with a rich soil cover combined with adequate water supply. मीन्स यहाँ पे एडिक्वेट मीन्स उचित मात्रा में जल की भी उपलब्धता है, क्योंकि रिवर है तो वाटर तो होगा ही. एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया. एग्रीकल्चरली मीन्स कृषि के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर दिस रीजन इज़ कंसिडर्ड द वेरी प्रोडक्टिव एरिया फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, आइदर वी कैन से रेयरिंग ऑफ क्रॉप्स. The rivers coming from the northern mountains are involved in depositional work. It means these rivers only responsible for the deposition of the sediments in the lower course. अब यहाँ पे lower course का मतलब क्या है? It means mountain से rivers जो है emerge करती है वो upper course हो जाएगा, mid course होगा फिर उसके बाद, और फिर सबसे नीचे फुटहिल एरिया में जहाँ पे नदी पर्वतों को छोड़ करके मैदानी क्षेत्रों में उतरना शुरू करती है. दीज रीजन्स कंसिडर्ड द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप. लोअर कोर्स में क्या होगा, स्लोप जो है जेंटल हो जाएगा. जेंटल मीन्स सामान्य ढाल हो जाएगा. बट इन द केस ऑफ मिडिल कोर्स एंड द अपर कोर्स व्हाट हैपेंड, द स्लोप आर स्ट्रीप. स्ट्रीप मीन्स तीव्र ढाल होगा वहाँ पे. देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेस, है ना. तो अब यहाँ पे है जो रिवर वाटर की वेलोसिटी है वो हाइट पे माउंटेन रीजन्स पे इंक्रीज करेगी, और जब प्लेन एरिया में रिवर्स आ जाएगी फ्लो करते हुए तो डिक्रीज करने लगेगी, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड. रिवराइन आइलैंड मीन्स एक ऐसा आइलैंड जो नदियों के बीच में डेवलप हो जाता है. सपोज रिवर वाटर गेट डाइवर्टेड ड्यू टू इरोजनल and due to velocity of waters divided into two parts, then mid parts have riverine. I would like to show with the help of picture also, like this way. Suppose this one is the main rivers flowing in two directions. Further, then what happen, this mid place of these two river, one river areas known as riverine islands. This area is having more height as comparison to the river valley area. I hope you have better understanding on this page. Now next page, one do you know is given. Majuli in Brahmaputra river is the largest inhabited riverine island in world, not in India. Inhabited riverine island means peoples belong on the same island, द मजूली आइलैंड. मजूली एक रिवराइन आइलैंड या आप कह सकते हैं जली द्वीप का एक एग्जाम्पल है. नाउ द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स. स्प्लिट मीन्स डिवाइड इनटू मेनी पीसेस. बहुत सारे पार्ट्स में नदी का जो मेन जल है वो टूट जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. अब टूटा क्यों, उसके कारण है कि वहाँ पे सिल्ट का डिपोजिशन हो गया. जैसे ये रिवर जा रही है और आगे बढ़ने के बाद क्या होगा, जो सेडिमेंट्स कैरी करके लेके नदियाँ चल रही हैं, ये सेडिमेंट्स अगर ज़्यादा हो गए तो क्या करेंगे, ज़्यादा होने से क्या करेंगे, रिवर वाटर को ब्लॉक करेंगे. देन रिवर वाटर स्प्लिट इनटू सो मेनी चैनल्स. इस प्रकार से नदियाँ जो हैं कई चैनल्स में डिवाइड हो जाती हैं. आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ दिस चैनल्स आर नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटरीज. अब यहाँ पे दो टर्म आ गया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्न इन प्रीवियस पेज अबाउट द ट्रिब्यूटरीज. नाउ another word come here, distributaries. Distributaries means main river water divided into many parts, and tributaries means several rivers joined with a single water bodies. Remember it. The northern plain is broadly divided into 3 sections. अब यहाँ पे है कि प्लेन एरिया को अगर डिवाइड किया जाए तो उसका 3 बंटवारा होता है, क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर टू एज द पंजाब प्लेन्स. तो फर्स्ट आपका हो गया पंजाब का मैदान, फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. चूँकि वेस्टर्न पार्ट में है तो जैसा कि पहले मैंने बताया
कि वेस्टर्न पार्ट्स प्लेन एरिया फाउंड बाय द एक्शन ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, इट मीन्स इंडस रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. सो पंजाब प्लेन्स वर वन ऑफ द फर्स्ट division of the northern plains. The larger part of this plain lies in Pakistan, है ना. तो we can say more fertile areas which developed by the action of Indus river system lies in the Punjab and mostly lies in the Pakistan. The Indus and its tributaries. What are the name of the tributaries? Like the Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj, Beas. These are the tributaries of the Indus. ये सभी इंडस मीन्स सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं. ओरिजिनेट इन हिमालय, और ये सभी नदियाँ हिमालय से उत्पन्न होती हैं, उत्पत्ति इनकी होती है. दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज़ डोमिनेटेड बाय द दोआब. अब ये जो सेक्शन है, ये जो पार्ट है प्लेन एरिया का, इसको दोआब कहा जाता है. दोआब मीन्स एरिया बिटवीन टू रिवर, दो नदियों के बीच का जो हिस्सा होता है उसको दोआब भी कहते हैं. बट दोआब इज़ डिफर फ्रॉम द आइलैंड, रिवराइन आइलैंड. अब रिवराइन आइलैंड और दोआब में डिफरेंस है इन द केस ऑफ एरिया, ठीक है ना. मीन्स रिवराइन आइलैंड लुक लाइक आइलैंड बिटवीन द वाटर बॉडीज, बट दोआब इज़ द रेज प्लेस विद इन द टू रिवर वैलीज. दो नदी घाटियों के बीच में उठा हुआ मैदानी क्षेत्र होता है, ठीक है. जैसे दोआब का आप ऐसे भी कह सकते हैं, दोआब मीन्स एरिया मेड बाय द टू रिवर्स. पंजाब अगर कहा जाए तो एरिया मेड बाय द 5 रिवर्स, है ना. डू यू नो, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोआब के बारे में बताया गया. दोआब इज़ मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स. डू, डू का मतलब क्या हो गया, टू, एंड अब, ए बी एब मीनिंग वाटर्स, मीन्स दो जो जल है, दो नदियों का जो जल है. सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स. पंज, पंज मीन्स 5 एंड एब मीनिंग वाटर. 5 नदियों के पानी से मिलकर पंजाब बना, 2 नदियों के जल से मिलकर के दोआब बना. नाउ फॉलो नेक्स्ट लाइन्स. द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर्स. अब ये सेकेंड आपका डिवीज़न है प्लेन एरिया का, नॉर्दर्न प्लेन एरिया का. फर्स्ट था आपका पंजाब प्लेन, सेकंड आपका हो गया गंगा प्लेन. तो ये जो है घग्गर और तीस्ता नदी के बीच का हिस्सा है. आप एटलस में देखेंगे, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में, स्पेशली रिवर पेज पे, उसमें दिखाया गया है कि घग्गर और तीस्ता नदियों का कैसे बहाव है, और उस बीच का जो इलाका है वो गंगा प्लेन कहलाएगा. इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ. अब कौन कौन से राज्य हैं जिसमें गंगा प्लेन आएगा, क्योंकि पंजाब प्लेन में तो मोस्टली पंजाब और पाकिस्तान का इलाका था. तो गंगा प्लेन में जो एरिया आपके इंडिया के आते हैं, नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड, मतलब थोड़ा सा हिस्सा झारखंड का भी इसमें आएगा, एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट. और गंगा प्लेन का सबसे पूर्वी जो हिस्सा होगा वो बंगाल का होगा. पर्टिकुलरली इन असम लाइज इन ब्रह्मपुत्रा प्लेन. और तीसरा जो मैदानी क्षेत्र है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, बिकॉज दिस प्लेन एरिया फाउंड बाय द एक्शन आइदर बाय द इंटरप्ले ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर. असम प्लेन्स है ना, असम का मैदान ब्रह्मपुत्रा नदी ने बनाया, तो ये तीसरा प्लेन एरिया हो जाएगा. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड डिजर्व्ड एज फ्लैट लैंड है. तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ये किस रूप में है, किस रूप में करता है, तो फ्लैट लैंड है, मीन्स सामान्य एक भूमि है, ठीक है. विथ नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ. रिलीफ मीन्स उच्चावच, रिलीफ मीन्स माउंटेन प्लेन प्लेटू, कंबाइंड रूप में इसको हम रिलीफ बोलेंगे. तो देर इज़ नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ. इट इज़ नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है. अब रिलीफ में वेरिएशन नहीं है, ये बात सत्य नहीं है. क्यों? दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स. डाइवर्स मीन्स डिफरेंट. यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के रिलीफ फीचर्स हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएशंस. अब ये जो अंतर है मैदानों में, उसके आधार पे अगर हम देखें इन रिलीफ फीचर्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स. अब रिलीफ फीचर्स के बेस पे 4 रीजन्स है, और फॉर्मेशन के आधार पे 3 डिवीज़न है प्लेन एरिया का. दोनों डिवीज़न पे आप फॉलो करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर्स, द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स.
द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट, जब डिसेंडिंग का मतलब उतरती है जब नदियाँ, है ना, आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स, तो जब नीचे आ जाएगी फुटहिल रीजन्स में तो कंकड़ों को, पेबल्स मीन्स कंकड़, कंकड़ों को जमा करिए ना, नैरो बेल्ट्स, वो भी पतले इलाका में एक पतला सा हिस्सा उसका डेवलप होगा। 8 to 16 किलोमीटर विड्थ इसकी बताई जा रही है। लेइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक, मीन जो शिवालिक पर्वत का जो ढाल है उसके पैरेलल ही वो जमाव होता है, और उस फॉर्मेशन को, उस लैंडफॉर्म को हम एक नेमिंग देंगे भाभर, ये याद रखिएगा, है ना। तो इसको हम भाभर कहते हैं। और भाभर की विशेषता क्या है? ऑल द स्ट्रीम्स मीन्स वाटर बॉडीज ऑफ द रिवर डिसअपियर इन द भाभर बेल्ट, क्योंकि वो कंकड़ है, तो जब वो राउंड शेप के बहुत सारे कंकड़ जब बिछ जाएंगे किसी के रास्ते में, तो वाटर क्या करेगा, वाटर उस गैप के अंदर से फ्लो करेगा और बाहर से वो दिखाई नहीं देगा। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, अब इस बेल्ट के और नीचे दक्षिण की तरफ आते हैं तो क्या होगा, अगर वो पेबल्स हट जाएंगे तो द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज, तो फिर से वो जो जलधारा थी, जो नदियां हैं री इमर्ज होती हैं, दिखाई देने लगती हैं। तो इसके लिए फिर एक टर्म यूज किया गया है, जब नदी का जल गायब हो जाता है तो उसको भाभर कहेंगे, और जब नदी का जल फिर से दिखाई देगा तो उसको हम, उस बेल्ट को हम, उस एरिया को हम तराई कहेंगे। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। थिकली फॉरेस्टेड मतलब घना जंगल होता है, जैसे उत्तराखंड में है, और बहुत सारे जंगली जीव यहाँ पे पाए जाएंगे। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड, और फॉरेस्ट को जो है काटा गया, साफ़ किया गया है, और वहाँ पे क्या क्रिएशन हुआ है, एग्रीकल्चरल लैंड डेवलप किया गया, खेती के लिए भूमि तैयार की गई है। एंड टू सेटल माइग्रेंट्स, सेटल माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स मीन्स क्या होता है, प्रवासी, दोज हु कम फ्रॉम द अनदर कंट्री, लाइक माइग्रेंट्स फ्रॉम द पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, जब भारत का बंटवारा हुआ 1947 में, तो जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे उनको इसी इलाके में बसाया गया। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, है ना। तो दुधवा नेशनल पार्क यह आपका एक नेशनल पार्क है इंडिया का, इस क्षेत्र में पाया जाता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। अब यहाँ पे दो बातें हैं, एलुवियल के भी दो पार्ट हो गए, न्यूअर एलुवियम एंड ओल्डर एलुवियम, जहाँ पे नदियाँ बार बार एक्शन करती हैं। रीजन विच गेट फ्लड ईयर बाई ईयर नोन एज newer alluvium, and river which drain area which drained by the rivers earlier, but present time there is no drainage basin known as the older alluvium. So they lie above the flood plains, और जो फ्लड प्लेन्स है, जो बाढ़ का क्षेत्र है, उस क्षेत्र से ऊपर होगा, क्योंकि तभी तो ओल्डर होगा। अगर लोअर प्लेन्स होगा तब तो बाढ़ आएगी, तब वो न्यूअर एलुवियम हो जाएगा। तो इसलिए लिखा गया कि they lie above the floodplains of the rivers and present a terrace-like features. terrace means सीढ़ीदार, है ना। तो वहाँ पे जैसे सीढ़ी की तरह एक फिजियोग्राफी शो करती है कि धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रही है। दिस पार्ट इज़ नोन एज बांगर, है ना। तो बांगर क्या हो गया, ओल्ड एलुवियम रीजन को बोलेंगे बांगर। अब न्यू एलुवियम जो होगा उसको क्या हम बोलेंगे, न्यू एलुवियम को हम खादर बोलेंगे। लास्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, द सॉइल इन दिस रीजन कॉन्टेन कैलकेरियस, कैलकेरियस का मतलब रिलेटेड टू कैल्शियम, है ना, कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम, चूने से बना हुआ। तो कैलकेरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकर, उस कैलकेरियस डिपॉजिट को हम कंकर कहते हैं। कंकर मीन्स कंकड़ की तरह ही होता है सॉइल में, ठीक है, तो वो फर्टाइल सॉइल नहीं होगा। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स, जो बाढ़ग्रस्त मैदान है वहाँ पे जो डिपॉजिट होगा यंगर होगा, जो पर ईयर होगा ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, नोन एज खादर। दे आर रेनोवेट। अब खादर की जो भूमि है, खादर जो बेल्ट है वो रेनोवेट होता है, मीन्स हर साल बाढ़ आती है, हर साल मिट्टी नहीं हो जाती है। सो these regions soil are very fertile, thus ideal for intensive agriculture। और ideal किसके लिए, intensive agriculture के लिए। 8th क्लास में आपने पढ़ा था, there are the two type of agriculture, extensive and intensive, where more population pressure people follow the intensive agricultures। तो I hope you have a better idea regarding today's topic, the northern plains।